અને હવે આપણે વાત કરીશું કે આખરે શમા બિંદુ કે જે ખૂબ જ ચર્ચામાં છે આજકાલ, કે જે પોતાની જાત સાથે જ લગ્ન કરવા જઈ રહી છે, આખરે તેના આત્મલગ્ન થશે કે નહીં? વડોદરાની યુવતીનો પોતાની જ સાથે લગ્ન કરવાનો નિર્ણયનો મામલો જે સામે આવ્યો છે, ત્યારે ક્ષમા બિંદુને લઈને મહત્વનો ખુલાસો કરવામાં આવ્યો. ક્ષમા બિંદુનું સાચું નામ સૌમ્ય દુબે હોવાનું ખુલ્યું છે. ક્ષમા બિંદુએ પોતાની ઓળખ લોકો સમક્ષ છુપાવી હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે. આત્મવિવાહ કરનાર યુવતીનું આધાર કાર્ડ સામે આવ્યું છે. ભાજપ નેતા સુનીતા શુક્લાએ ઓળખ છુપાવવા અંગે સવાલો ઉઠાવ્યા છે. ભાજપી નેતા સુનીતા શુક્લા આત્મવિવાહનો કરી રહ્યા છે વિરોધ. ત્યારે ક્ષમા બિંદુ આ યુવતી છે તે ખૂબ જ ચર્ચામાં આવી ગઈ છે, કારણ કે તેણે એક નિર્ણય કર્યો છે, તેને લઈને જ તે ખૂબ ચર્ચામાં આવી છે. તે પોતાની જાત સાથે જ લગ્ન કરવા જઈ રહી છે અને આને લઈને જ ગુજરાત નહીં પરંતુ સમગ્ર દેશમાં ક્ષમા ઉપર ચર્ચાનો વિષય છે તે થઈ ગયો છે. ત્યારે વડોદરાની યુવતીનો પોતાની જ સાથે લગ્ન કરવાના નિર્ણયનો જે મામલો સામે આવ્યો હતો, ક્ષમા બિંદુને લઈને મહત્વનો ખુલાસો કરવામાં આવ્યો છે. ક્ષમા બિંદુનું સાચું નામ સૌમ્ય દુબે હોવાનું ખુલ્યું. વડોદરામાં યુવતીના આત્મવિવાહનો મામલો સામે આવ્યો હતો. તેમાં પૂર્વ કોર્પોરેટરે યુવતીના આત્મવિવાહના લગ્નનો વિરોધ કર્યો છે. આ વિરોધ બાદ ક્ષમા બિંદુએ મીડિયાને મળવાનું ટાળ્યું હતું. વિવાદ છતાં પણ ક્ષમા બિંદુ લગ્ન કરવા માટે મક્કમ હોવાનું સામે આવ્યું છે. વડોદરામાં એક યુવતીના આત્મવિવાહનો જે મામલો સામે આવ્યો હતો તે ખૂબ જ ચર્ચાનો વિષય બની ગયો છે આજકાલ. પૂર્વ કોર્પોરેટરે આ યુવતીના આત્મવિવાહના લગ્નનો છે તે વિરોધ કર્યો હતો. વિરોધ બાદ ક્ષમા બિંદુએ મીડિયાને મળવાનું ટાળ્યું હતું. તો આપણી સાથે પૂર્વ કોર્પોરેટર સુનીતાબેન શુક્લ જોડાઈ ગયા છે. સુનીતાબેન, જણાવશો કે શા માટે ક્ષમાનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે? ક્ષમાએ જે નિર્ણય લીધો છે કે હું પોતાની સાથે લગ્ન કરીશ, બંધારણીય રીતે અમે એને ગેરવ્યાજબી નથી ઠેરતા, પરંતુ એને પોતાની સ્વતંત્રતા છે લગ્ન કરવાની, એની સાથે અમને વિરોધ નથી. પરંતુ એને લગ્ન કરવાનું સ્થળ જે દેવોના દેવ મહાદેવની જગ્યા એને પસંદ કરી. મહાદેવનું મંદિર એક હિન્દુ ધર્મની લાગણીઓ સાથે જોડાયેલું હોય છે. રોજ ત્યાં અસંખ્ય લોકો મહાદેવજીના દર્શન કરવા જતા હોય છે. અને જો એ ત્યાં જ રહી અને આવો દેશના યુવાનોને યુવતીઓને આવો આ જ મંદિરમાંથી સંદેશો આપે કે હું આ પ્રકારના લગ્ન કરી રહી છું, તો આજકાલના યુવાનો આવી વિદેશની જે કોઈ પણ પ્રવૃત્તિઓ છે ત્યાં ખૂબ જ બહુ ઝડપથી આકર્ષણ એ લોકોને આવી જતું હોય છે. અને આપણા હિન્દુ ધર્મના એક ખતરો ઉભો થાય એવી પરિસ્થિતિ મને જણાઈ આવી કે જો આ યુવતી લગ્ન કરે, એક શહેરમાં એને જો 100 છોકરા કે 100 છોકરીઓ આવી રીતે ફોલો કરે તો 400 બાળકો જન્મ લેવાનું બંધ થઈ જાય. એ 400 હિન્દુના બાળકો જન્મ ના લે. આવી રીતે ભારત દેશ બહુ મોટો 135 કરોડની આબાદી વાળો દેશ છે, બહુ વિશાળ દેશ છે, એમાં અસંખ્ય શહેરો છે. મને એવું ચોક્કસપણે લાગે છે કે આજે મનોવિકૃતિ ધરાવનારી આ મહિલા જે છે તે કોઈ ષડયંત્રનો ભાગ છે કે જે હિન્દુના બાળકો પર હાવી થવા માંગે છે. જી, આપ દ્વારા જે વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે કે લગ્નમાં આ વિવાહ ન થવા જોઈએ, કારણ કે તે પોતાની સાથે લગ્ન કરવા જઈ રહી છે, પરંતુ આની સાથે એ પણ માહિતી મળી રહી છે કે આ યુવતી છે તે સંપૂર્ણ રીતે હિન્દી રીતિ રિવાજો વચ્ચે લગ્ન કરવા જઈ રહી છે. તમે જો રીતિ રિવાજના વાત કરતા હોય તો હિન્દુ શાસ્ત્રમાં ક્યાં એવો કોઈ રિવાજ નથી કે પોતે પોતાની સાથે લગ્ન કરે. તમે ધાર્મિક ગ્રંથો પણ જુઓ કે ક્યાંય પણ પૌરાણિક ગ્રંથો પણ જુઓ, અને લગ્નની જે વિધિ છે એ વિધિ વિધાન સાથે થતી હોય છે. એક સ્ત્રી અને એક પુરુષ એ સામાજિકની વ્યવસ્થા પ્રમાણે આ બે વ્યક્તિ લગ્ન કરતા હોય છે. ક્યારે પણ જો એવું કહેતી હોય કે હું સમાજના વિધિ વિધાન પ્રમાણે મારી જાતે લગ્ન કરું છું, તો બેટર છે કે એને આવી જાણ ન કરી હોત અને પોતે એના પોતાના ઘરમાં ફેરા લઈ લીધા હોત તો પણ ચાલત.
પણ આ યુવાનોને ગેરમાર્ગે દોરવા માંગે છે, હિન્દુ સંસ્કૃતિ પર એક ઘા કરવા માંગે છે અને આ સંસ્કારી નગરીનું એક નામ બગાડવા માંગે છે. વડોદરા સંસ્કારી નગરી છે અને એ સંસ્કારી નગરી આખી વિશ્વ વિખ્યાત છે. એટલે આ વડોદરાના અને દેશના બાળકોના સંસ્કારોનું આ એની પ્રવૃત્તિથી એ પોતે ખનન કરવા માંગે છે. જી બિલકુલ, આપણી સાથે ક્ષમાબિંદુ પોતે જોડાઈ ગયા છે. ક્ષમાજી, તમારું સ્વાગત છે. આપ જણાવશો કે આવો નિર્ણય આપે શા માટે લીધો? કોઈનાથી ઇન્સ્પાયર થયા હતા? આવું આપે ક્યાંક જોયું હતું કે દેશ વિદેશમાં આવા કોઈ लग्न થયા છે તેને જોઈને आप इंस्पायर થયા હોય? जी, जब मैंने एन विद एन ई एक वेब सीरीज देखी, उसमें मैंने जब पढ़ा और उसमें मैंने ये डायलॉग सुना, एवरी वुमन वांट्स टू बी अ ब्राइड बट नॉट अ वाइफ, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड. मुझे दुल्हन बनना था पर किसी की बीवी नहीं बनना था. उसके बाद मैंने गूगल किया. गूगल करने के बाद मुझे पता चला कि सोलोगेमी करके कंसेप्ट है. दुनिया में बहुत लोगों ने शादी की है अकेले, अमेरिका में रजिस्टर भी हुई है. तो मैंने जस्ट यही सोचा, जैसा कि सुनीता जी ने कहा, मैंने सिर्फ यही सोचा कि मैं खुद से शादी कर लूंगी, छोटी सी शादी, जहाँ मेरे पहचान के लोग होंगे, जहाँ मेरे जान पहचान के लोग होंगे. शादी करके ये निपटा दूंगी मैं. मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं इतनी ज्यादा वायरल होंगी या इसके ऊपर ऐसी चर्चाएं होंगी. पर जब होने लगी तो मुझे ये पता चला कि लोग इससे सिर्फ विकृत नहीं हो रहे, इंस्पायर भी हो रहे हैं, जो कि मैसेजेस और कमेंट्स में आप देख सकते हैं. और ये शादी का निर्णय मैंने 2-3 महीने सोचने समझने के बाद ही लिया है. સુનિતાજી, શું કહેવું છે આપનું આ મામલે? એ ભી કેનેડાની જે વેબ સિરીઝ જોઈ અને એમને આવું મળ્યું વિચાર કે હું આવું કરું, તો મારે તેમનું સૂચન છે, નમ્ર વિનંતી છે, એ કદાચ મારા દીકરીના ઉંમર જેટલા જ છે, તો બિંદુને મારી એક નમ્ર વિનંતી છે કે ગીતાજી વાંચો. ગીતાની અંદર વિશ્વના તમામ વિકૃતિઓ હોય, પ્રશ્નો હોય, એનું સમાધાન છે. તે પોતે સોશિયોલોજીમાં ગ્રેજ્યુએટ છે, તો સોશિયોલોજી વિષય સમાજ સાથે જોડાયેલો છે. એ સમાજની અંદર જે રહે છે એને તમે એમના વિચારધારાઓ ક્યારે પણ બદલી નહીં શકો, પણ આનો જે પોતાનો વ્યક્તિગત વિચાર છે એ વિચાર એનો સ્વતંત્ર છે, પણ એ સમાજ ઉપર એની શું અસર થાય છે અને પોઝિટિવ નેગેટિવ 3 મહિનામાં એ કહે છે કે મેં વિચાર કર્યો, તો શું આની સમાજ પર શું અસર થશે? એ સમાજ વ્યવસ્થા સાથે જોડાયેલા છે. કોઈ સમાજમાંથી જ બહાર આવે છે, એ આકાશમાંથી ઉતરેલી તો વ્યક્તિ નથી. એમને પણ પેરેન્ટ્સ હશે, એમના પણ ભાઈ બહેન હશે, એમનું પણ કુટુંબ હશે. તો એવી રીતે આ સમાજને પણ કુટુંબ છે, બાળકો છે, બાળકીઓ છે. તો મારા પોતાના આવા નિર્ણયથી શું સમાજ પર અસર થશે? ભારત દેશ પ્રત્યે એની પોતાની કોઈ જવાબદારી જ નથી. આવવાથી તો હિન્દુત્વ પર કેટલી બધી ખરાબ અસર થશે. આ તો હિન્દુત્વ પર ખતરો છે. આ એક વ્યક્તિઓ વિચાર કરે કે હું લગ્ન નહીં કરું, તો એની પાછળ 100 લોકો પ્રેરણા લેશે. તો હિન્દુત્વના ખતરાઓ એટલા માટે છે કે બાળકો જન્મ જ નહીં લે. એ લેસ્બિયનની વાત કરે છે તો એની સાથે પણ સહેમત છું હું. એ લોકોને પણ મારો સંદેશો એ જ છે. રાઈટ, जी बोलिए क्षमा जी. जी, मैं वही कहने जा रही थी जो कि उनको पता था मैं क्या कहूंगी, जिसका जवाब सुनीता जी ने दे दिया. लेस्बियन और गे लोगों की जब मैं बात करने जा रही थी, जो एक्सेप्टेंस हमारी सोसाइटी में कुछ टाइम पहले नहीं थी और आज है. आज है सेक्शन 377 के बाद. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज नहीं हो सकता पर अमेंड होता है. जो हमारी सोसाइटी है उसको बदली नहीं जा सकती, पर हम हमारी तरफ से हमारी सोच के हिसाब से सोसाइटी में जिस तरह जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस आ रहे हैं उनके साथ हमको एडेप्ट तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल. पर ये कैसा एडेप्शन है कि हम खुद के साथ ही शादी कर लें? जी, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है हम खुद के साथ ही शादी कर लें, बट दिस इज वन ऑफ द कंसेप्ट जस्ट लाइक होमोसेक्सुअलिटी. जैसे जिस तरीके से लेस्बियन और गे लोग शादी करते हैं, कल को अगर समाज आगे नहीं बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं खुद बाइसेक्सुअल हूँ, ये प्राइड मंथ चल रहा है, मैं खुद बाइसेक्सुअल हूँ,
कल को अगर मैं किसी लड़की के साथ रहना चाहूँ और ये सोचूं कि समाज आगे ही नहीं बढ़ेगा अगर मैं लड़की से शादी कर लूं, तो क्या मैं शादी ही ना करूं? तो दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. आई बिलीव एज एन इंडिविजुअल इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री आई हैव माई राइट्स टू डू द थिंग्स आई डिजायर, जो कि लीगल इलीगल के दायरे में नहीं आ रहा. खुद से शादी करना ना ही इलीगल है ना ही लीगल है, जो कि आई अंडरस्टैंड. इसके अलावा रही बात समाज की, मैं भी उतनी ही बेटी हूँ, समाज उतना भी मेरा है, हिंदुस्तान उतना भी मेरा है और उतना ही रहेगा. समाज के प्रति मेरा फर्ज है, दायित्व है, इसीलिए शायद आज मैं ये लोगों तक पहुंचा रही हूँ. जो लोग आज मुझे मैसेज कर रहे हैं हेट कमेंट के साथ, जिन्होंने अच्छे कमेंट्स किए हैं कि काश हमने शादी नहीं की होती तो हम खुश होते, तो हमको नहीं पता. वी कैन नॉट डिसाइड फ्रॉम देयर बिहाफ. उनकी तरफ से हम ये फैसला नहीं ले सकते कि तुमने शादी तुमको करनी है कि नहीं करनी है. ये अगर कंसेप्ट आया है तो वी हैव टू लेट देम डिसाइड तुमको शादी करनी है कि नहीं करनी है. पर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हिंदुत्व पे खतरा है? जैसे सुनीता जी ने अभी बताया कि हिंदुत्व पे ये खतरा है कि आपसे इंस्पायर कई और भी लड़कियां हो सकती है. जी देखिए, जब मैंने मेरा सर मुड़वाया था तभी भी मैं चाहती ही थी लोग इंस्पायर हों. मैं मीडिया के पास नहीं गई थी. अगर मुझे जाना होता उस वक्त भी मैं जा सकती थी. तो अगर मैं ये खुद से शादी कर रही हूँ, ये हिंदुत्व पे खतरा तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक योर पर्सपेक्टिव. दो चीजें हैं, सिक्के के दो पहलू हैं. आप देखना क्या चाह रहे हैं आप खुद डिसाइड करेंगे. अगर मुझसे कोई इंस्पायर होके कोई खुद से शादी करना चाह रहा है तो करने दीजिए, खामी क्या है उसमें. आज आपको किसी के साथ रहना ही नहीं है तो खुद से शादी करने की वजह क्या है? खुद से शादी करना सिर्फ एक जेस्चर है. आपको यही समझाना चाह रही हूँ. इट इज नेसेसरी फॉर मी. इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो खुद से शादी करिए. लाइक हेट्रोसेक्सुअल मैरिज, जो लड़का और लड़की शादी करते हैं कि तुमको साथ में रहना है, तो अभी तो लिव इन भी लीगल है, बट तुमको साथ में रहना है, सोसाइटी बोलती है शादी करिए लीगली. उनके लिए नेसेसरी है. होमोसेक्सुअल के लिए नेसेसरी नहीं है, सोलोगेमी के लिए नेसेसरी नहीं है, मेरे लिए भी नेसेसरी नहीं है. पर मेरे लिए ये मेरे प्रति एक जेस्चर है शादी करना. अगर आप शादी खुद से नहीं करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, और आप खुद से शादी करते हैं तो उसके बाद क्या फर्क पड़ेगा? जैसा कि मैंने आपको बताया था, बचपन से ही मेरा सपना था दुल्हन बनने का. मैं शादी नहीं करूंगी, आप मेरा सपना तोड़ देंगे. तो शादी तो करना है मुझे, दुल्हन तो बनना है, बस मुझे किसी की बीवी नहीं बनना. इसलिए मैं खुद से शादी कर रही हूँ. शादी मैं नहीं करूंगी अगर, तो पहली चीज मैंने एक टैटू कराया है जिसमें मैंने लिखा है आई चूज मी. मतलब मैं खुद को चुनती हूँ. हर चीज हर सिचुएशन के ऊपर खुद की खुशी चुनती हूँ. तो अगर मैं शादी नहीं करूंगी मतलब मैं खुद को चुन नहीं रही हूँ. और ऐसी सिचुएशन कभी मेरी जिंदगी में नहीं आई है, नहीं आएगी, जब मैं खुद को नहीं चुनूंगी किसी और चीज के करते हैं. सभी लोग मानते हैं कि खुद से प्यार करना चाहिए, पर खुद से प्यार करना ये इसकी साबिती नहीं है कि खुद से शादी भी कर लो आप. जी जरूर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. खुद से प्यार करने का मतलब ये नहीं है आप खुद से शादी करो. आई एग्री. बट मैं करना चाहती हूँ बिकॉज मैं दुल्हन बनना चाहती हूँ. मैं लोगों तक, अगर लोग ये समझ रहे हैं कि वो खुद से प्यार करते हैं तो उनको खुद से शादी करनी है, तो मैं पब्लिक को बता देना चाहती हूँ ऐसा नहीं है. बहुत तरीके होते हैं आपको सेल्फ लव दिखाने के. मेरा तरीका ये है, तो मैं ये नहीं कह रही आप भी यही तरीका अपनाइए. आप ये तरीका अपना रहे हैं, वेल इन गुड, आपको पूरा राइट है खुद से शादी करने का. पर आप अगर कोई और तरीका अपना रहे हैं तो भी वेल एंड गुड. ये मेरा तरीका है, मेरा प्यार खुद को जताने का, बिकॉज ये मेरा बचपन से सपना रहा है कि मैं दुल्हन बनूं. ओके, आपको दुल्हन बनना है, यही शौक है आपका, पर ऐसा नहीं हो सकता कि शादी ना करके आप दुल्हन के जैसा गेटअप रेडी करके आप फोटोशूट करवा ले, वीडियो शूट करवा ले. इसके लिए शादी करने की क्या जरूरत? ये तो फिर वही बात हो गई. अगर आप लेस्बियन और गेज को बोलोगे, आप होमोसेक्सुअल्स को बोलोगे कि शादी लीगल नहीं हुई है, शादी करने की क्या जरूरत है, आप फोटोशूट ही करवा लीजिए. ये एक धारणा होती है, मन के अंदर विचार होता है, एक संपूर्णता फील होती है शादी करने के बाद. जब मैंने खुद को शादी के जोड़े में देखा, जब मैं जोड़ा खरीदने गई, मेरी आंखें नम हो चुकी थी आंसुओं से, क्योंकि मैं खुश थी, क्योंकि मैं खुद से शादी कर रही हूँ.
अगर मैं फोटोशूट कराऊंगी वो खुशी मुझे प्राप्ति नहीं होगी। पर ऐसा नहीं हो सकता कि खुद के साथ प्यार करने के साथ साथ ही कि आप किसी लड़के से शादी कर ले? आपको किसी लड़के से प्यार नहीं हुआ अभी तक? मुझे हुआ है लड़के से प्यार, मुझे हुआ है लड़की से भी प्यार। ओके। पर वो मुकम्मल नहीं हो सका। अभी मैं अकेली ही हूँ और अभी मुझे खुद से प्यार है और मैं खुद से शादी करना चाहती हूँ। और ऐसा नहीं है जैसा आपने सवाल किया किसी लड़के से शादी कर लूं। ऑब्वियसली मैं किसी लड़के से कर सकती हूँ, बट क्या मैं करना चाहती हूँ, सवाल ये होना चाहिए। शादी तो मैं खुद से करना चाहती हूँ। आपको ये ख्याल कब आया कि खुद से शादी करनी है? ये शॉर्ट टाइम में आपने ऐसा डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं लग रहा आपको? नहीं, शॉर्ट टाइम में बिल्कुल नहीं लिया। बचपन से मुझे दुल्हन बनना था, बट ये सारी चीजें, आदमी औरत का भेदभाव मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। आदमियों का भी दुख मुझे अच्छे से पता है, औरतों का भी दुख अच्छे से पता है। इसी समाज से निकली हुई हूँ और अभी भी इसी समाज में मेरा सवाल ये है कि आपको जी आपको ये ख्याल कब आया कि खुद से शादी करनी है? कितने समय वहीं पे आ रही हूँ Okay. मैं। इसी वजह से मुझे कभी बीवी नहीं बनना था, वहीं पे आ रही हूँ मैं। इसी वजह से मुझे कभी बीवी नहीं बनना था। बचपन से मुझे दुल्हन बनने का तो शौक था, पर बीवी नहीं। तो मेरे विचारधारा में बचपन से ये था, दुल्हन तो बनना है पर बीवी नहीं, अब किया क्या जाए। तो जब ये सीरीज देखी मुझे पता चला कि हाँ, शादी करना पॉसिबल है अकेले। तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना किया जाए खुद से शादी। आपने कब देखी थी ये सीरीज और आपको कब ख्याल आया कि खुद से शादी करनी है? 3-4 महीने पहले मैंने देखी थी और मैंने फिर रिसर्च किया सोलोगेमी के बारे में। मैंने रिसर्च किया लोग दुनिया भर में कैसे शादी कर रहे हैं। मैंने ये भी रिसर्च किया कहाँ लीगल है। मैंने ये भी रिसर्च किया इंडिया में लीगल है कि नहीं है। ओके। मैंने रिसर्च किया कौन से धर्म के हिसाब से कर सकती हूँ, क्या सवाल उठ सकते हैं। और जैसा कि मुझे सुनीता जी જી જી ક્ષમાજી અને સુનીતાબેન, આપ બંને અમારી સાથે ચર્ચામાં જોડાયા તે બદલ આપનો આભાર.